Now, just for a quick reminder, what we were doing in the last class, which was lecture 7. Lecture 7 में हम we were doing some special compounds and some special compounds में हम ethanol कर रहे थे. And then ethanol में हम कर रहे थे properties of ethanol. Which properties? Chemical properties. फिर तुम्हारे साथ भी होता है, जब ब्रैकेट लगाना होता है वो सी बन जाता है ना? Anyways. Okay, so now ऑक्सीडेशन की बात करते हैं. नाउ ऑक्सीडेशन, रिमेंबर जब हम कंबशन कर रहे थे तभी मैंने तुम्हें बताया था कि दिस इज जस्ट कंट्रोल्ड कंबशन. कंट्रोल्ड कंबशन. ओके. नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट टर्म हियर जो कि हम यूज करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन द रिएक्शन देयर इज अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2CrO7. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है उसे समझाने के लिए दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज एक्सप्लेनिंग यू दैट पोटेशियम परमैंगनेट containing sodium hydroxide. मतलब you have two compounds here. This is KMnO4 plus NaOH. Very important. ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस मिला हुआ है with potassium permanganate and this is a very very strong oxidizing agent. Okay. Similar to this, there is also an option of using sulfuric acid with acidified potassium, मतलब sulfuric acid with potassium dichromate, and this will be known as acidified potassium dichromate. Remember, when it means acidified, this means कि इसमें H2SO4 ऐड हुआ है, sulfuric acid, and similarly यहाँ पे जो alkaline potassium मैग्नेट है इसके मतलब इसमें NaOH एडेड है. क्या? नहीं, that's the thing कि some combinations are just better oxidizing agents than the मतलब product cells, जो elements itself. So this particular combination is a very very acidified CR2 K2CR2. हाँ, वही कह रहा, कोई और एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि this just is a better combination. These are just tried and tested things. So now what happens is, and I do have to, this is endothermic reaction, I do have to provide heat as well. But when I add alkaline KMnO4, which is technically यहाँ पे ये दो compounds added है यहाँ पे NaOH plus KMnO4, this releases what is known as a nascent oxygen. ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है which makes it very very highly reactive. Now why is this reactivity very very important here? Because carbon compounds नहीं करते मतलब इतना react किसी के साथ. So for something to react with it, for example if you mix it with acid, no, it is not having a reaction of some sorts. Okay, now it might combust at higher जैसे कहते हैं ना temperatures, for example, but it will not corrode like other stuff. So what we do is we add this particular mixture and we heat it. We get, here is what we get. This is two nascent oxygen atoms. These are two atoms. Okay, this is the reason this reaction is weird, because this doesn't really have, मतलब इस reaction को ऐसे भी लिखा जा सकता था CH3 CH2OH plus KMnO4 plus O2. This gives us CH3 COOH क्या? Oh, sorry. Plus NaOH plus NaOH. But the problem here is now कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकला उसके बाद इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी बनेंगे. ठीक है, मुझे वो प्रोडक्ट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे. सो सिंस मेरे लिए इस रिएक्शन का रेलेवेंसी सिर्फ ये है कि उससे मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहा है उसे, तो आई जस्ट राइट इट ओवर द रिएक्शन सो दैट इसके मुझे प्रोडक्ट्स और मतलब रिएक्टेंट्स अलग से ना लिखना पड़े, because they technically are not really the products which we want or neither the reactants that we want. We just want a very strong oxidizing agent. If we can replace this with any other strong oxidizing agent, then it is very well understood. That's why it's not a part of the reaction, which we call oxidation reaction of carbon compounds. So now this oxidation reaction is not just true for ethanol, this will be true for all alcohols. तो इस सारे अल्कोहल में रिएक्शन होगा. ठीक है, और ये सिंस बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यू कैन वेरी वेरी क्लियरली से यहाँ पे मेंशन्ड है कि अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स
ऑक्सीजन फॉर, मतलब हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एंड पोटेशियम पर अल्कलाइन पोटेशियम permanganate and acidified potassium dichromate are both very very strong oxidizing agent. Remember, the name matters a lot. You cannot just write potassium permanganate as a strong oxidizing agent. They mean it when they say alkaline potassium permanganate, because it is no longer a single compound, it is a mixture of two compounds. It's just named one, but it is a mixture of two compounds. Okay, क्या नहीं, ये रिएक्ट करते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर कंपाउंड बन चुका होता तो हम उसे कंपाउंड का नाम देते। कंपाउंड बना नहीं है, एडिंग द टू टुगेदर, अंडरस्टैंड, एडिंग द टू टुगेदर फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्ट. Okay. Now, see, the thing is, in your class, and I like to refrain from using a lot of time measures. For example, you are never in class 10th taught the speed of reaction. कि मतलब you might, मतलब तुम्हें हमेशा प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, and you might think कि सर अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 मतलब बना के ही रख लूं अलग से, एंड देन उसमें ऐड कर दूं एथेनॉल, तो फिर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या फिर मुझे साथ में ही डालना है ना. These are questions requiring you to understand the rate of reaction, that or which is not taught in 10th, which can properly be understood when you actually watch these reactions, which is a good experiment that you should do. Maybe we will also do it in revisions, that revising it, we just go through the video of that particular reaction, and then it's much easier to understand कि actually क्या हो रहा है. ठीक है क्या? नहीं नहीं, we won't act experiment it. It's a lot of reactions in your course are toxic. A lot of reactions are not permitted to be done in basements. So no, matlab, it's just not possible. But yes, videos are available, which are much better tools to learn, because we could not have that kind of resources, but they have. More importantly, what I'm trying to tell you is, do not try to guess the rate of reaction, and do not try to guess these things कि अगर मैं पहले से रखूं या बाद में करूं. It depends बेटा. Some reactions are quite rigorous, तुरंत हो जाते हैं. Some reactions might take a while. Some reactions needs a trigger point. Some reactions need catalyst. So you do not know without it. A lot of reaction need catalyst. कि उसे बोलते हैं एक्टिवेटर. देखा तुमने कभी? तुमने वो एमसील को साथ में मिक्स करा है? उसमें दो होते हैं लिक्विड्स. ठीक है, एमसील नहीं, एमसील छोड़ो, तुमने कोई ग्लू करा है? तो परमानेंट ग्लूज होते हैं ग्लास को चिपकाने वाले, दो अलग ट्यूब्स में आते हैं. यू मिक्स देम टुगेदर एंड देन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ये इतनी देर में लगा लो. हैव यू एवर प्लेड अराउंड विद रेजिन? कि मतलब रेजिन से कुछ क्या? हाँ, इपॉक्सी या रेजिन, या तो मतलब इपॉक्सी में भी यही होता है कि यू मिक्स देम टुगेदर, यू हैव अ सर्टेन टाइम बिफोर सेटिंग, एंड देन क्योंकि नाउ यू स्टार्टेड द केमिकल रिएक्शन, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, बट दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉट दैट क्विक कि वो तुरंत हो जाएगा. ठीक है, अगर इंस्टेंटली होता तो जैसे ही आप पोर करते दोनों को टुगेदर, वैसे ही वो सॉलिडिफाई हो जाता. बट दिस वेरी फैक्ट दैट रिएक्शंस डोंट अकर, जिसे कहते हैं ना, मतलब इंस्टेंटेनियसली, इज व्हाट हेल्प्स अस इन लाइक काइंड ऑफ हेल्प्स अस इन मोल्डिंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल सोच के देखो ना, अगर हमारे जो जिप्सम है लगाते ही हो जाता तो क्या मजा आता? व्हाइट वॉशिंग करने जा रहा है, मुंह पे लगा, माइटी हो गया, मुंह सीधा पत्थर बन गया. सो you just don't want that, hard to buy, and then all of a sudden you have a statue. So no, that takes time. It takes time. And also the thing is that a lot of people don't understand, gypsum सूख नहीं रहा, plaster हाँ reaction हो रही है. It's just that कि we don't see things in air, so we just don't predict कि we don't predict कि कुछ हो रहा है. For example, agar I remove all the carbon dioxide from this surrounding, all the some I will remove all the carbon dioxide from the surrounding, and which would not be fatal for us. In fact, we would not even care. More importantly, we will be a lot more alive, we will be a lot more energetic, and our efficiency will increase. Yes, pure oxygen increases efficiency. You should not breathe in pure oxygen because your lung efficiency decreases. Your efficiency increases, but lungs ही खराब होती है because lung को तो breathe नहीं करना पड़ता तुम्हें energy provide करने के लिए. So what happens is, when you do that, now all of a sudden there is no CO2 to form to make it calcium carbonate, which is the solidified whitewashing that we see, which means that it will stay in the liquid form forever. क्योंकि वो reaction हो ही नहीं पाई. So if it doesn't happen, so you have to understand the reaction that is taking place is happening in air, but doesn't mean that it will happen no matter what. It is happening because air already has gases. It's just like combustion. That we take, for example, कि अगर मुझसे कोई पूछता बचपन में, when I was, मतलब when I did not study 10th, I thought आग माचिस लगाता है. Well, that's not true.
स्पेस में ले जाओ माचिस, माचिस तो जलेगी ही नहीं, माचिस तो नहीं जलेगी ना। देन आई माइट से कि नहीं माचिस तो नहीं जलाता, तो एयर जलाता है। देन ऑल ऑफ सडन आई डिक्रीज सिग्निफिकेंटली द प्रेशर ऑफ एयर, एंड व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, योर ignition temperatures, your boiling points changes. You know, it's fun, very, very fun that the higher altitudes you go, the lower the boiling point of water, which means, which actually means, let's say you have a temperature sensor. Let's say आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है कि देखो 100 डिग्री जब होगी ना, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ना मेरा लेट्स से व्हाट डू यू हैव, जो मतलब लेट्स से केटल 100 डिग्री होगी तो बंद कर देना, मतलब तो यू थिंक कि ओ माय गॉड माय प्रोडक्ट इज ऑसम, कि मैंने केटल बनाया कि 100 डिग्री होती है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जो हर केटल में होता है आजकल, यू नो दैट. सो यू वेंट टू सम कैंपिंग प्लेस समवेयर इन द पहाड़, एंड देन वो कभी रुका ही नहीं, बिकॉज तुम कभी 100 डिग्री पहुंचोगे ही नहीं. व्हाई? बिकॉज समथिंग कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अनटिल अनलेस वो पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा, तब तक वो 100 से नीचे ही रहेगा, which would be the boiling point of water, which means it would never actually reach 100, which means it will never actually turn itself off. So you have to consider the abhi nahi class but too late. Anyways, so you have to consider the factor that no, it is not always constant, and the reaction rate of reaction is something that we don't study in this class. It's not even something that you study for all reactions in all specific classes. This is something that is like more of a curiosity thing. So this is where practicals come in handy, because you cannot in reactions that, if you remember, this is one of the shortcomings of chemical reactions. First chapter में लिखा था ना आपने कि what are the limitations of our chemical reactions. तो आपने लिखा हुआ कि we never know the rate of reaction, कि कितनी स्पीड में हो रही है. ठीक है, we know endothermic एक्टोथर्मिक ज्यादा से ज्यादा, we maybe know the states of reactions, and मतलब because हम mention कर रहे हैं, but I do not know the rate. It's not a dynamic equation first of all. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेम्पररी स्टेट आता है, लेट्स से ना, जैसे तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पता है तुम्हें क्या होती है? सो देयर इज दिस केमिकल सॉरी देयर इज दिस एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ टू लिक्विड्स which are immiscible, sorry, which are miscible. Miscible means they can be mixed, they can be mixed well. For example, let's say water and vodka, like मतलब they mix pretty well, right? मतलब medicinal, let's say medicinal alcohol, sanitizer is in different proportions. So let's just say कि sanitizer mix pretty well with water. Now, the question arises, and if they have very close boiling points, what would happen is very close boiling points से पता है क्या होता है कि एक का boiling point reach होता है, and we might think कि मतलब काफी लोगों को लगता है ना कि एक का boiling point जब reach होगा ना, तो पहले वो सारा evaporate हो जाएगा फिर next होगा. That is not what happens. जो मिक्स लिक्विड होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के बीच में कहीं आ जाता है, उस पर लिक्विड बॉइल करने लगता है, एंड देन एक पर्टिकुलर पोर्शन में जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है वो पहले इवापोरेट होता है, एंड उसके साथ साथ दूसरा भी हो रहा होता है. तो what this created a problem that I actually cannot separate those liquids. So there's something called fractional distillation. वो क्या करता है, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज बहुत स्लो कर देता है. तो मतलब धीरे, इतनी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है. इट्स अ सिंपल सेटअप, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड सेटअप. क्या? हाँ, गोल्डन सरफेस एरिया बढ़ाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से इफेक्टिवली टेम्परेचर राइज स्लो होता है, जिसकी वजह से एक्चुअली तुम सेपरेट आउट कर पाते हो लिक्विड. नाउ सी, जब हम पढ़ रहे थे, इट वाज वेरी सिंपल फॉर अस कि इफ टू लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, इट्स सिंपल, एक पॉइंट पे बॉइल करो दूसरा निकल जाएगा. बट द रिएक्शन नेवर एक्चुअली टॉट अस द रेट ऑफ इट, बिकॉज द रेट इज व्हाट इज determining the factor कि हमें fractional distillation use करनी पड़ती है. This was in class 9 for anyone who's clueless where this was related. So yes, so that's why you don't know and you are a little clueless. It's totally fine. Now, yeah. सर ये वाली रिएक्शन एक बार समझा दो. हाँ, ये रिएक्शन को समझाते हैं. So you have ethanol, which is the alcohol that हमने तो बोला कि बहुत स्पेशल होता है. ठीक है, बाय द वे शुगर केन से बनता है, पता तुम्हें? शुगर केन के एक्सट्रैक्ट. ये शुगर केन से बनता है और ये अल्कोहलिक होता है? No, yes, alcohol is made in a lot of different ways. It's just cheaper to make through sugar cane. I mean, you can make it through, you can make it through, what do you say, wheat. You can make it through wheat, and depending on from what it is made, it is named beer, it is named different things.
या पोटैटो से भी बनता है, तो मतलब इट्स अ लॉट। हाँ, बार्ले से ही बियर बनती है। सो मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स। द थिंग इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो तेरी जनरेशंस को पीने को मिल जाएगा, तेरे किसी काम की नहीं है वो। It's not the thing is simple as that. It's in making alcohol and consumable alcohol, not commercially. Commercially तो कोई भी बना लेगा, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कमर्शियली तो जब कोई घर में चीज सड़ जाती है ना, उसमें भी काफी बार अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है, वो पी लो। If you want to, but yeah, and that is the reason why part of it, part of every time every anyone drinks alcohol, they should feel like कि what did they expect? It is a सड़ी हुई चीज, it will harm you, मतलब you have to understand it. Something is breaking down into enzymes, and then that enzymes is releasing alcohol. That is how it's produced. Yeast is, मतलब yeast ही होते हैं, बड़ी सी बांध लेंगे, पानी के साथ मिक्स कर देंगे कुछ भी, मतलब अजीब अजीब से प्रोडक्ट के, depending on what kind of alcohol they make. And you have root beers and stuff, so you have beetroot, they do a lot of stuff, weird stuff. Okay, a lot of weird stuff. People put it in cakes and stuff. I don't know, I just don't know. Why the hell? सर 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 सर, Yeah, एक वो केक नहीं बनता क्रिसमस में रम केक करके? yeah. A lot of people think that it evaporates. No, it doesn't. No, it doesn't. Now that doesn't have to do with the fact कि वो कितने high temperature पे हो रहा है, हाँ evaporate हो जाता, but alcohol ऊपर layer पे नहीं रखा हुआ. It is mixed in the batter. It has to become porous and then come out of it, and depending on how much time you bake it, which is not a lot for a lot of things. I mean, I'm just saying it, 40 minutes is not a lot. People bake things for a very very long time. कभी कभी बिस्किट्स जो बहुत क्रंची होती है, उन्हें 6 घंटे की लाइन में लगा के छोड़ दिया होता है, तो मतलब 30 मिनट तक तो तुम्हारा पिज्जा ही बेक होता है। ठीक है, तो मतलब it doesn't get rid of the alcohol. If it did, what the hell was the point of it? No, what the hell is, what is taste? Think about it. Taste comes from the taste chemically will only come if there is the chemical left. So there the chemical is there. Yeah, I know, but it's neither legal. No. You cannot purchase it, just so you know. You तो फिर सर सर सर, तो फिर ऐसे क्रिसमस में तो the ones you are getting are not proper actually one, for example, हाँ मतलब नहीं उसमें actually डाल देंगे, but so significantly less that it doesn't matter. It's not significant enough to matter. It's like कि मतलब कैफीन हर चीज में होता है, but I mean एक रेड बुल पीने से तुम्हें मतलब बेहोशी नहीं आने लगेगी। हमें लाइक तो मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती उसमें, that's what I'm trying to say. But actually when people make it at homes, it's not that simple. सर, It's not. सर जो रम केक होता है, No. It's things getting rotten and things getting producing alcohol are very different things. So there's a process of making it. This is also known as an art. So very easily, it's not that it's not illegal. I mean, yes, you can definitely. Yeah, maybe. It's a stupid investment, but if you want to go ahead, do it. I mean, no problem. It's like a, yeah. Oh, that's because majority people prefer preserving wines. A lot of wines are made from fruits, so that's one of the reasons. The classical ones are industry produced, and they have different things. सर It's had different processes, but none of it is relevant for us. I mean, it's not a chemistry thing. It's so more like an art thing and more like a proper alcoholic beverages class. So if we were in like hotel management or winery or something, we would be discussing it. No, we are not. You wish. Anyways, सर next सर react. सर, वो जो रम केक होता है उसको तो मतलब उसमें अल्कोहल होती है, बट उसको तो मतलब ऐसे हर बच्चे को खिला सकते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो भी खाते हैं तो। The proportion matters a lot, beta. For example, let's just talk about something very, very. Let's just talk about इलीगल something. नहीं है ये, मतलब ऐसे? नहीं, no. It's see, understand the quantities are the what makes things illegal. For example, let's talk about iron. ठीक है, तो तुम में से कौन कौन को मैं आयरन बार दूं तो खा जाओगे कि सर हम ना कतई पेट हमारा मजबूत है, हम आयरन खा जाएंगे। क्या तेरे पेट का इतना स्ट्रांग भी नहीं है, उसके बाद आयरन की कमी भी नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी ही कमी हो जाएगी।
दुनिया से? आयरन की क्या होगी? क्या? इससे HCl से? नहीं, why would it vaporize first of all? Why do you have gas? You don't have HCl gas. No. HCl is dangerous to be. HCl in gaseous form is HCl. So you're melting down your throat and stuff if you're breathing in. Yeah, and if it is very much diluted, then it doesn't matter. और दूसरी बात, आपकी म्यूकस की लाइनिंग एसोफेगस में उतनी मोटी नहीं है जितनी पेट में है। तो मतलब अल्कोहल, मतलब अगर तुम HCl तो है पेट में, HCl पी लेते हैं, क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत ज्यादा कुछ होगा। मेल्ट थ्रू योर, मतलब पहले तो पहुंच नहीं पाएगी पेट तक, यू जस्ट लीक थ्रू समवेयर, आई डोंट नो, लीक इनसाइड द बॉडी और समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी स्ट्रांग। गैस्ट्रिक जूस इज प्रीटी स्ट्रांग, इट इज नॉट, मतलब गैस्ट्रिक जूस इतना स्ट्रांग होता है कि a lot of times, no, it is a lot of times, this is something that happens in a lot of combat and stuff. For example, you got hurt, accidents, you got shot, and your gastric juices leak and then they damage other organs. So that's how strong they are. So it's just like your, believe me, your stomach is protecting a lot of stuff. ठीक है, it's like कि तुमने कभी देखा, देखो पटाखा होता है ना, ठीक है, पटाखे और माचिस को साथ में रख रखा है, दोनों के डब्बे ही बचा रहे हैं उन्हें, दोनों के डब्बे ही बचा रहे हैं उन्हें, one of these days. So yes, we are made like that, very very reactive things, very dangerous things working together. But yes, that is how it works. The second, जो सारंग सर ने क्या पूछा था कि हाँ, मतलब the quantity is लीगल नहीं होता। think about something very very strong. Think about something which will, for example, I was saying iron. Now iron in very high quantities is like मतलब undigestible to us, but doesn't mean कि छोट, for example cellulose हम digest नहीं कर सकते, but doesn't mean तुमने एक पत्ता खा लिया तुम्हारी मौत हो जाएगी, नहीं, हाँ, we know that नहीं होती, ठीक है। yes it might, किसमें? yes, everything that's green, ठीक है, has it, but the thing is it has a lot of other things as well. You don't have to digest it, and you don't digest everything that you eat, just so you know. Let's say you eat small beads of iron, बहुत बच्चे खा लेते हैं, थोड़ा बहुत छोटे छोटे ऐसे कुछ, बहुत सारी ऐसी weird चीजें खाते हो तुम जो अनडाइजेस्टेबल है। That's why we have a digestive system, कि जो वेस्ट है वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। ये नहीं कि सब कुछ बॉडी में स्टोर कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ, नहीं। We are not a sorting mechanism. We are use what we can and throw away rest of it, that mechanism. ठीक है, just like an amoeba. अब मान लो अमीबा ने खाने के अराउंड एक आयरन की गोली कर ली, तो आयरन थोड़ी पहचान लेगा कि भाई आज तो कुछ नहीं कर सकते, अभी बाहर तो जाएगा, मेरे बाहर फेंक दो, खत्म बात, सिंपल। तो बॉडी इज एक्सट्रीमली intelligent about it, you don't have to worry about it. मतलब body is extreme, either you will like fall sick and then body is trying to fix itself, or automatic reboot, or मतलब it will just handle it. It's not that big of a deal. So that's why in small quantities almost nothing is poisonous. For example, you know, bananas are radioactive. तो क्या हम बनाना ना खाएं? बट उसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी कम होती है कि फॉर इट एक्चुअली टू मैटर, आई थिंक यू हैव टू कंज्यूम थाउजेंड्स ऑफ बनानास। उससे पहले पोटेशियम, हाँ उससे पहले पोटेशियम पॉइजनिंग से मर जाओगे, मतलब रेडियो एक्टिविटी, चलो निकलो, चलो कुछ नहीं होता ऐसा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स डू नॉट have that kind of high concentration of stuff, so it's totally fine. And alcohol is also used in a lot of medicines that doesn't, for example तुम सोचो ना, सर देखो हमने ना सैनिटाइजर से हाथ साफ करा, हाथ पे थोड़ा अल्कोहल है, फिर मैंने खाना खाया, मैं तो अल्कोहलिक हो गया। टेक्निकली यस, doesn't matter, it's too less of a proportion. Yes, I mean yes, you did consume alcohol. अबे ऑर्थोट्रीचिनेचराइज हो तो मेथनॉल खा रहे हो तुम, और भी तब भी कुछ नहीं होता। We are not that weak, understand? We are not that weak. We are pretty strong. क्या? कोशिश करके देख, अगर बच गया तो मे बी रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, we have finally digested a iron bar or something. क्या? नहीं, हम we'll just like sharpener से उसे शार्प करके, मतलब आयरन फिलिंग्स देखिए तुमने, आयरन फिलिंग्स वो देंगे तुझे पानी में मिला के, ट्राई करिए। You have seen that movie, what's X-Men देखिए तुमने? याद है उसे, मतलब वो आयरन खिला देती है देन फिर वो मैग्नेटो। एनीवेज, कर बेटा कर, करेगा तो बताइए जरूर, पहले बताइए। नो iron, just so you know, iron will never give you magnetism. Iron is a ferro magnet material, it can be turned into magnet
but it's not easy to turn iron into magnet. What you do is, and this, you know how magnets are made, right? बहुत high voltage pass कर दो, बस टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना हो, लो हाई वोल्टेज पास करो, बन गया मैग्नेट। और मजेदार बात पता है क्या है? दोबारा हाई वोल्टेज पास करो, गया मैग्नेट। क्या तू आयरन है? तू फेरो मैग्नेट है? तू फेरो मैग्नेट है? जब चुंबक अगर यहाँ पे लाऊंगा तू अट्रैक्ट होगा, फिजिकली अट्रैक्ट होगा, नॉट मेंटली कि ओ माय गॉड चुंबक, मजा ही आ गया सर, चुंबक ले आया। नो, हमें आयरन है, हमारी तो अगर हम हाई इनफ वोल्टेज पास करते हैं। we do not, no, we do not conduct just so you know, we do not conduct electricity because our body has iron. We have a lot of other minerals that can conduct electricity. We have a liquid blood flowing through it, a lot of other stuff, and lot of cells which are inflamed with liquids which has salts in them. That's why no, iron is not the reason we are conducting electricity. It's like iron बहुत कम है यार हमारे अंदर. वैसे दारू की हाई इनफ वोल्टेज के साथ आयरन बन जाएगा ना मैग्नेट। You will fry before that. No, you are not yourself then. It's like you think कि सर मेरी ashes ferromagnet हो सकती है क्या? Maybe, I don't know. Your ashes maybe, you cannot be. हाँ मतलब just sign a paper then in which I get you possession of your ashes, then we'll have an experiment. हाँ खाया करो बेटा, आयरन खाया करो. आयरन खाने के बाद में कितनी बार Oh, actually, iron utensils are good for you because of this particular, because they do not like give you enough iron कि तुम unconsumable बन जाए, but that scraping of that frying thing releases a little bit of iron, and that's why it tastes so bad, so bad, so bad. But yeah, that's you actually eating iron. Some places where you have water lines, water pumps, they have iron-rich water as well. And you might think क्या मजेदार बात है, पानी से iron मिल जाएगा. You would hate it because that water is consumed better best. मतलब पहले के 10 मिनट में कर लो तो ठीक है, उसको छोड़ दोगे, it's pain to drink that. क्या होता है? Maybe I'll get, मतलब I don't know, मतलब that's probably in more majority कहते हैं मतलब rural areas, so it's difficult to get that. But I'll give you mineral water. कभी पिया है आपने? No, no, not the ones, मतलब I'll tell you which one to drink. नहीं वो तो अलग होता है, वो डिपेंड करता है कहाँ कहाँ हैंडपंप है. दिल्ली का तो हैंडपंप भी मेरे को लगता है कि पोल्यूटेड होगा. हाँ फिर सही है. Because that's not polluted. दिल्ली में सीप इन हो चुका है pollution, ground water polluted. I have no idea about it. See, the thing is, I'm not what do you say, archaeologist, or who the hell looks at groundwater? I don't know. I really don't know. I'm just saying, if it is iron rich, it will taste weird, and you are not used to it. तुम बिस्लेरी वाले हो, तुम्हें पानी नहीं अच्छा लगेगा. Majority पानी तो अच्छा नहीं लगेगा. Also, water of different countries tastes different. That is the reason coffee tastes different. That is the reason Coca-Cola tastes different. They are using the same formula. उन बेचारों की गलती नहीं, उनका पानी अलग है. अब इंडिया से इंपोर्ट करके थोड़ी लाएंगे तुम्हारे लिए. ये है इंडियन है, इसको ना पानी इंडिया का ही पिलाए. नहीं, it tastes different. Coffee tastes different. टेस्ट बस उनके डिफरेंट डेवलप होते हैं, हमारे डिफरेंट डेवलप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर उसके देखो ना, हरियाणा से कोई दिल्ली जाता है, एकदम से ऐसा नहीं लगता कि मतलब जन्नत मिल रही है पानी के नाम पे. इतना सॉल्टी वाटर है हरियाणा में मेजोरिटी कि मतलब दिल्ली वाटर एंड स्पेशली द वन दिल्ली जल बोर्ड से जो आता है इज अ लॉट मोर प्योरिफाइड. इट मतलब समटाइम्स इट्स आल्सो ड्रिंकेबल. अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट्स ड्रिंकेबल. नो हम नहीं पी सकते बेटा, मैं मौत हो जाएगी मेरी अगर मैं नल से पानी पी लिया ना, मेरी मौत हो जाएगी. और it tastes it. Go home, taste it. मतलब don't take glass me. Just a spoonful of it. Go home, taste it. It is not, no, don't taste it. I have tested the water. It's very, very polluted. To even नहाने के लिए भी अच्छा नहीं है वो. हाँ नहाने के लिए अच्छा नहीं, let alone drinking. क्या Delhi is like much better. Delhi's water is much better. बेटा तू तो आयरन भी खा लेता तेरे गए. चलो next देखते हैं reaction with sodium metal. So now sodium again is a highly reactive substance. So when we mix sodium with ethanol, we form something known as sodium methoxide and hydrogen gas. That's all you need to know. Do not discuss applications of it. We'll get into क्या any compound is the meaning? No, it's अच्छा ये I will not get into the details of it. I mean, it's not कि हमेशा covalent वो ex-covalent. It's not true. Just so you know, it's not true. और जो हाइड्रोजन गया वो माइनस था प्लस था.
माइनस प्लस कुछ नहीं होता, माइनस प्लस इज कि वो आयन है, नहीं, इट इज आयन। नहीं there is यहाँ पे ओ नेगेटिव का मतलब C2H5 वाला ion दिया है, OH वाला ion दिया, हाइड्रोजन दिया। does it matter? Hydrogen is hydrogen. No, 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 hydrogen is hydrogen. Understand, मैं again तुम्हें बताता हूँ, even though we study structures, atoms do not rearrange themselves in that particular way which you are thinking. ऐसा कुछ नहीं है कि एक एटम निकाल लिया तो तोड़, मतलब पेड़ नहीं है कि तोड़ लिया हमने उसमें से. It works very differently, and how it actually works is very, very beyond your scope. Very beyond. ये पूरा कोवलेंट ही कंपाउंड होता है. अच्छा, ये वाला ये आयन है और ये भी आयन है, ये दोनों आयन्स हैं. So वहां से एक हाइड्रोजन ब्रेक करने की वजह से, and since Na being so, I don't think this reaction is complete. Is it complete? Is it balanced? हाँ, फिर ठीक है. So now what happens is that now in Na being very highly reactive, this breaks down hydrogen. It breaks down hydrogen from this particular ethanol, and then it forms sodium ethoxide, which is an ionic compound. Obviously, you can see the positive and negative, and hydrogen gas is released. Now, if you think about it, this is very similar to when metals reacts with acids. Metal reacts with acids to release hydrogen. It is not an acid at all, but it. तुम पावर ऑफ सोडियम देख रहे हो, वो कह रहा है तुम एसिड नहीं हो, हाइड्रोजन छीन लूंगा. यही कर रहा है. तुम देखो इसकी मतलब चौड़ कितनी है इसकी. आई जस्ट लाइक दिस रिएक्शन बिकॉज की चौड़ कितनी है कि ये कहता है मैं कोवेलेंट हूं, मैं किसी को मतलब हम पे एक्स्ट्रा नहीं है, हम पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कहता अच्छा. That's the weird part. It was a covalent. We studied covalent bonds are strong, but sodium is like, I am the main character. I am stronger, and then it just breaks down. नेक्स्ट करते हैं जो हमारी जनरेशनल दिक्कत है, डिहाइड्रेशन. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. व्हाट इट मींस, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है सर? पानी की कमी. डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होगा? पानी हट गया, पानी निकाल लिया. तो हम क्या करते हैं? हम लेते हैं एथेनॉल, ठीक है, उसमें से पानी ले लेते हैं. पानी अगर निकाल ले उसमें से हम, ठीक है, तो हमें मिल जाता है एथीन एंड पानी. ऑब्वियसली पानी निकाल लिया हमने. That's the reaction. So dehydration of alcohol means the removal of water molecule from it. Now the question comes, and this is a very important question. सुनना ध्यान से. A lot of people confuse this with कि alcohol में से removal of water molecules का मतलब ये हुआ सर alcohol में water molecule होता थोड़ी है. सही बात है. Alcohol is not कि alcohol के साथ phosphorus crystallization attached है कि मैं वो remove कर रहा हूँ. No, totally different things. मैं क्या कर रहा हूं? I am removing, and this is better understood if I change the lines a little bit, means the removal of water equivalent molecule. मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल है नहीं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए चाहिए क्या हमें? H2O. मतलब so we have two, अगर इसमें मैं 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो मैंने H2O रिमूव कर दिया, ये मैं कहूँ. एक्चुअली मतलब इट्स लाइक सेइंग कि अल्कोहल था, मैजिक पानी निकाल दिया मैंने इसमें से. Well, I mean that's not water in it. डबल बॉन्ड कैसे बन गया उसमें? क्योंकि एक हाइड्रोजन वाला हाँ, मतलब the thing is things have to rearrange. Think about it that I have CH. फिर हमें नेक्स्ट टू सपोर्ट आ तो हाइड्रोजन निकल रहा. रिमेंबर एक लाइन मैंने कही थी जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी थी, केमिस्ट्री इज अ मूवी, वॉच इट, डोंट डायरेक्ट इट. बट फिर भी अगर हम H2SO4 का काम क्या होता है? वो यार आयरन मैन में चुटकी क्यों बन जाएगी? कैप्टन मार्वल थी, इतनी पावरफुल है, आती नीचे वो उसने पूरी शिप तोड़ दी, उससे चुटकी नहीं बचती. कैरेक्टर प्लॉट करना था उन्हें कि भाई कोई इम्पैक्टफुल मरना चाहिए. मार्वल मर जाता क्या ही फर्क, मतलब किसी को पसंद आती नहीं थी. मूवी वाली जिंदगी. हाँ, मतलब लोगों को नहीं पसंद, मुझे तो अच्छी लगी थी, मेरे को नहीं पता. सेक्सिस्ट है लोग, बस ये कह रहा हूँ. गर्ल गेटिंग टू मच पावर, पीपल डिड नॉट लाइक इट. ओ माय गॉड, लड़की लीड करेगी, ओह एक्सक्यूज मी. इतने से 3 एक्टर चूज करे, किसी को दिक्कत नहीं. पीपल आर सेक्सिस्ट, कुछ नहीं होता. उसकी पर्सनालिटी भी थोड़ी आउटगोइंग थी, जो सबकी है. हाँ भाई. तुम अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वैसी पर्सनालिटी देखोगे ना भाई साहब, मतलब जिसकी द वेरी रीजन वी लाइक हिम इज बिकॉज ही हैज दैट आउटगोइंग पर्सनालिटी. ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग. ही हैज दैट काइंड ऑफ dominant personality. And then all of a sudden some woman gain that personality and no one likes it. Oh my god, ये समझती क्या है उसको? I mean, I get partially the reason but not good. So that's what I'm saying. The plot holes, there are a lot of plot holes. कि मतलब स्पाइडरमैन कहाँ कूद रहा है इन्फिनिटी वॉर के खाली वेस्टलैंड में? कहाँ वेब जा रहे हैं उसके? वेब कहाँ जा रहे हैं उसके? मेरे को समझाओ ना. तो फिर नीचे जाएगा ना वो. How would he?
अरे मेरे पास वहाँ की एयर इतनी डेंस थी कि उसमें मैं चले जाऊँ। तो उड़ ही जाता ना, फ्लोट कर, स्विम कर लेता, इतनी डेंस थी तो। नो, दे आर प्लॉट होल्स, यू वुड सी प्लॉट होल्स कि एक जगह मतलब एक जगह जो कहते हैं ना स्पाइडरमैन, मतलब हैंग करके जा रहा है उसके आयरन मैन, उसके सॉरी एंट मैन के बड़े से हाथ पे, अगले सीन में वही एंट मैन ही छोटा सा बन के इधर से जा रहा है, सेम सीन में। तो देयर आर, अंडरस्टैंड, स्टोरी देखो, डोंट ट्राई टू डायरेक्ट इट, वी कैन नॉट चेंज इट, एंड ऑल्सो वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज राइट नाउ टू चेंज इट। अगर उन्होंने एक्सेस को डाला तो एक्स तो देगा ही, तो पक्का है। What makes you think that that H2, H plus that H positive ion will combine with it? बेटा वैसे तो पक्का वो हाइड्रेशन रिएक्शन, सर, हाइड्रोजन एक्सक्यूज मी रिएक्शन। सर। Yes, बेटा। सर वो एग्जाम में ना ये मतलब यही वाले ऑक्सीडेशन का एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इफ एक्सेस KMnO4 इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। हम्म। तो उसमें मतलब लिखना क्या था, मतलब एक्सेस बोला था उसमें। I'll have to get back to you on that. We'll add the question here so that I also remember ki यस what सर, बिकॉज happened. उसमें पहले ये वाला मतलब यही ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन था। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज 5% ऑफ KMnO4। फिर एक और Yes. क्वेश्चन था हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन था कि उसका केमिकल रिएक्शन लिखो, एंड जब एक्सिस KMnO4 पास थ्रू होता है फ्रॉम द रिएक्शन तो व्हाट हैपेंस। Okay, we'll discuss. Yeah, this is a concept ki just like तुमने एक और बार करा होगा एक concept, जब CO2 ज्यादा पास करते थे तो मिल्की से फिर से यस ट्रांसपेरेंट हो सर। जाता, but it was not reversal of the reaction, it was a new compound formed, so calcium bicarbonate. So हाँ, वो बस कलरलेस होता था, एग्जाम में क्वेश्चन आया कलरलेस हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर तुम यीस्ट डालोगे शुगर सॉल्यूशन में और जो गैस पास होगी उसको लाइम वाटर में डालोगे तो क्या होगा। अब मैं बायो के हिसाब से लिखूं या फिर केमिस्ट्री के हिसाब से। मत लिख बेटा, तो ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, डज इट रियली मैटर? ऑब्वियसली इट्स अ केमिस्ट्री क्वेश्चन। नहीं वही बता रहा हूँ बायो क्वेश्चन बताएगा। तो अच्छी बात है ना, मैं तुम्हें डिफ्यूजन कराऊंगा अभी, तो तुम क्या बोलोगे डिफ्यूजन फिजिक्स में आ गई? बट सर वहां पे अगर बायो के टर्म्स नहीं लिखे तो नंबर कटेंगे, मैंने पूछा था। दोनों लिख दे बेटा, दोनों लिख दे। आई व्हाई नॉट ऐड केमिस्ट्री टू इट rather than एक्सेस डालोगे तो क्या होगा। again and again told you bio is chemistry at its roots, so it doesn't matter. हाँ, मैं तो एक्सेस जब निकलेगा तब भी डाल देगा आगे। चलो एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, डिहाइड्रेशन में हमने concentrated H2SO4 ऐड करा, एंड देन दिस इज 473 के 473 हुआ ना, 373 होता है 373, सॉरी 373 प्लस 1 373 होगा। 100 डिग्री पर 373 होता है। ओके हाँ तो प्लस 70 तो कितना होगा? 550, 443 ना। यार बड़े बेशरम हो यार, जब सर ऊपर लिखा तो हुआ है। हाँ बेटा सही कह रही है। अरे 170 है 70 ऐड करना है, 100 पे ही होता है वो, 100 डिग्री 373 है। 0 पे 273 होता है, सोच लो। तो फिर 170 273 में ऐड करो, ठीक है। अच्छा, तो दिस रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक और हाइड्रोजन लीव्स इट विद C2H4, and the only possible way of C2H4 existing is the double bond arrangement, which makes it ethene and water. This particular reaction is what is known as dehydration reaction. ठीक है, so और dehydrating agent क्या है हमारा? Dehydrating agent is our sulfuric acid, which is all that not surprising if you think about it. Acid dehydrating something is like matlab, yeah, you could understand it. Which removes water molecule, and it is again, remember, this removes water molecule from ethanol molecule. It did not have a special water molecule attached to it. It just removed the equivalent of a water molecule, 2 hydrogens and oxygens from it. That's why it is called dehydration. रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। Didn't we do oxidation for, I mean, if you think about that, yes, you could say this is getting reduced to, this is a what do you say? This is a decomposition reaction.
ठीक है। हमें कहता है कि हर रिएक्शन में रिडॉक्स तो हो ही सकता है ना, हमारे पेपर में हाँ, हर नो एवरी रिएक्शन, रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन ऑल ऑफ जो देम। आंसर था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी उस नो नो नो, देखो रिडॉक्स वो नहीं होगा। एक डबल डिस्प्लेसमेंट था, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, एक कॉम्बिनेशन था, एक तो मैं सिंगल वाला ये चीज है वाला। जस्ट शो मी द क्वेश्चन, बाद में डिस्कस करेंगे। बट नो, दैट्स नॉट गुड इनफ रीजन कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से, मतलब डजंट मीन कि डिस्प्लेसमेंट कभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया पेपर में। हाँ पेपर में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन स्टेट मतलब वो था कि प्लस 2 से 0 हुआ है आयरन का। आयरन की वो डीकंपोजिशन थी तो थोड़ा लॉजिकल था तो हो गया। सर ये 7 वाला प्लस 2 0 अगर इसको कोई भी आइटम ना हो तो ऑक्सीडेशन which of the following is a redox reaction? Okay, see the thing is important, तुम्हें बस ये देखना है कि इसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ है, मतलब कि समझते हो, मतलब जैसे CO2 आगे चल के भी CO2 ही रहा, लेकिन इसके साथ कंबाइन कर गया, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ नहीं वहां पे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो यू डिड रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा है ये बताना है ना। यहाँ पे O3 रहा, कुछ नहीं हुआ उसको। ये सेकंड अच्छा, दैट इज लाइक electrons which is अच्छा, the change of oxidation state in the given redox reaction is, why are they giving oxidation? मैं तो पढ़ाया नहीं है। This is not in your course यार, मतलब हमारी एक्सपीरियंस क्लास में इसमें भी नहीं पढ़ाया। I'll have to teach, अगर ऐसे questions आएंगे I'll have to teach you extra यार, मतलब फिर this is the concept but not in 10th. Do you even know the word meaning of, no, I don't think so. कुछ नहीं होता, don't discuss things that you do not have studied, it's totally fine. पूछना जरूर एक बार, what the hell is oxidation state, पूछना जरूर है, you very much should ask, because I get shocked यार, मतलब this is very problematic. इससे ना लिमिट समझते हो तुम, साइंस में लिमिटिंग फैक्टर है कि देखो सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा, then they go about asking questions of electron reduction, मतलब इलेक्ट्रॉन चेंजेस से कैसे ऑक्सीडेशन होगी, and then I'm like okay, then I have to teach that, then they start also asking रिकॉर्डिंग चल रही है, क्यों बुलवा रहे हो? रिकॉर्डिंग में टीचर की बुराई हो तो आजकल के बच्चे। Next reaction is a esterification reaction. Now, this is a very, very important reaction, not just from the point of view of your examinations, but from the real life point of view. ये हम में से जो भी महक के आता है, वो सारे esterification reaction की वजह से ही महक पाते हैं। ठीक है, तो मतलब all the yes, but we never discuss this again. Yes, esters are a group, a class, and you can have a lot of esters. Yes, we do not study, not in our syllabus. No, और 10th के आगे तो बेटा मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे क्या पता। चलो, anyways, let's move forward. So the reaction of a carboxylic acid with an alcohol. Now it's important कि ester कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है. It doesn't mean कि ये particular reaction is the only esterification reaction. It is just the one of the simpler ones which you can understand. So this esterification, and I have seen in even board questions and sample paper questions, जब वो किसी और का दे देते हैं, and a lot of students get confused. So do not that मत इस reaction को, मैं दिखाता हूँ याद कैसे करना है. ठीक है, तो इसको ना लिखो ऐसे पहले तो. उल्टा कर रिगार्डिंग देखिए तो गुड बॉय COOH. ठीक है, प्लस थोड़ा ना वो लगता क्या कहते हैं ये अनइम्पोर्टेंट था. you I remember one thing, understanding does not guarantee retention. वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. Yes. For example, अगर आप लोग मुझे अपना बर्थडे बताओ,
Will I not understand it? कि मुझे ना समझ ही नहीं आया ये पैदा होना कौन सा पद? No. But would I remember it? Probably no. Would you try it? No. No. I don't like to remember wasteful stuff. If you have a birthday tomorrow, just inform me. I'll wish you. That's the best I can do. Isn't that nice to just, why do you expect, oh, people care about things? People only care about things they remember. I forgot to sleep, forgot to eat, forgot to go home sometime. टीचर वाला काम हो गया So, खाना खाना भूल गया। हाँ, yes. Bag लाना भूल गया, yes. जूते पहनने भूल गया, one of these days, yes, even come into the center. So yes, I forget stuff. Doesn't mean they are not important. I don't know why people say you only forget unimportant stuff. Oh my God, I never forget stupid stuff. I only forget important stuff. Okay. So now what do you do is you take out one of the H from here. ठीक है? So देखो यहाँ पे ना, अरे वही से निकालते हैं ना। So हाँ I हाँ can हाँ. see So it. हाँ मतलब इसमें ये इन्होंने C2H5 ले रखा है, तो मैं इसको C2H5 और यहाँ पे HO कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन लूंगा, यहाँ से क्या लूंगा, और ये बॉक्स बनाना बड़ा जरूरी है. ये बॉक्स ना तुम पेपर में ही बना सकते हो. ये बॉक्स बना दो. ठीक है, पानी निकाल लिया इसमें से हमने. टेक्निकली this also could be said dehydration. It's just that it has a better name. We don't call it dehydration. But is it getting dehydrated? Yes. नहीं बट These are the दो अलग concentrated अलग कंपाउंड है ना। H2SO4 है. पानी तो हाँ मतलब दोनों से निकाल रहा है, इसलिए मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब उससे दोनों डिहाइड्रेट थोड़ी होते हैं। एग्जैक्टली मतलब पानी निकाल रहा है बस. This is getting मिक्सचर डिहाइड्रेट होता है। नहीं उनका हाँ मतलब you could say that. Doesn't make sense. It's not dehydration. It's esterification. इसके और भी नाम है, अभी देखोगे. So this part अगर हम remove कर दें, in the presence of concentrated H2SO4, पानी नहीं देना है इसे, पानी तो बन ही रहा है, नहीं देंगे, concentrated यूज करेंगे. Sometimes concentrated acids are used for quicker reactions. Sometimes they are used because the dilute one will never work. Yeah. That's the thing कि we are taking things which are like, जैसे कहते हैं ना, मतलब again reactions are मतलब जब तीन चीजों को मिक्स करते हैं ना, मिक्स तभी बोलते हैं ना आप मिक्स thoroughly, because we want all of them to react together, and this is the product you get when all of them react together. Okay. This is, yeah, no, that's the thing you're saying. It is not a reactant. Facilitating the reaction, kind like catalyst. रिएक्ट तो कर ही आएगा ना उसे ना कौन किसने कहा? वही मैं कह रहा हूँ, किसने कहा? Chemistry is a, ये स्टोरी, ये एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे और तुम्हारे ना 90% केमिस्ट्री के डाउट्स खत्म हो जाएंगे. क्यों एक खत्म कर दो। अब फॉर एग्जांपल इतने नखरे हैं मतलब पीरियोडिक टेबल, फिर आ गए वो क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, आइसो बात तो अलग अलग जगह होते ही है, अलग जगह होते हैं. आइसोटोप के लिए अब जगह ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में, तो कहते हैं यार तुम बहुत हो गए, इतनी बार अपडेट कर चुके हैं. हाँ, इतनी बार अपडेट कर चुके हैं, कहते हैं इसके ऊपर 2 डब्बे और लगा दो, सेम डब्बे के ऊपर 2 डब्बे और लगा दो, बोल दो क्या नहीं कर रहे हैं अपडेट, क्यों? अब एक और नया तरीका निकालते हैं करने. ये ऑलरेडी बहुत मेहनत से बना था. तुम पढ़ते अगर चैप्टर 5 तुम्हारे में होता कि कितनी मेहनत लगी थी इसको बनाने में, ये पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल जो अभी हम यूज करते हैं, सो दुखी हो गए वो. लोगों को याद ना करना. एग्जैक्टली. याद नहीं पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली. करवाते. नहीं सुनो, सिंबल के नाम तो याद ही करने पड़ेंगे ना. बट अगर तुझे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पता है और सब में पता है +1 हो रहा है, कितनी अच्छी बात है. वही तुझे हाइड्रोजन में 7 होते, हीलियम में 5 होते, कोई पैटर्न ही नहीं होता, फिर करते सब याद करना पड़ता. ठीक है, इट्स लाइक कि तुम डेक ऑफ कार्ड्स अगर मैं तुम्हें वो दूं, लेट्स से अनशफल्ड और सीक्वेंस में लगे हुए हैं सारे, तुम एक कार्ड देखोगे तुम्हें नेक्स्ट पता होगा ना, याद करना मुश्किल होगा. लेकिन अगर पता है डेक ऑफ कार्ड्स में क्या होता है, मुश्किल है इतने सारे कार्ड्स और क्या क्या याद करें. ठीक नहीं सीक्वेंस बनेगी, नॉट एन एग्जाम. ठीक है, सीक्वेंस बनेगी तो यू वुड नो आफ्टर अ व्हाइल. मतलब इनफैक्ट ऑल ऑफ यू राइट नाउ नो कि अगर लेट्स से अलग अलग सूट्स रखे हैं, पहले क्लब्स रखा है, देन हॉर्स रखे हैं, एंड देन डायमंड्स रखे हैं, देन उसके बाद उसमें पहले वैल्यू वाइज रखे हुए हैं,
कि किंग क्वीन जैक पहले फेस कार्ड्स, फिर एस 1 2 3 4 5 6 9, तो यू इट्स इजियर टू रिमेंबर नाउ। वही मैं शफल करके दे दूं, रटो सारे 52। ओए 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 ओए, 52 चीजों को साथ में याद करना कहता है कितना मुश्किल होता है। जस्ट सो यू नो, मतलब नो वन गेट्स इट हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कितने नंबर याद है जिंदगी में? नहीं, 10 डिजिट, 10 डिजिट नंबर, अरे फोन नंबर, अच्छा फोन नंबर देखो इन्फिनिट याद है। क्या फोन नंबर फोन नंबर 11 5 या 6, और ये तो 10 डिजिट में ही है, और ये मैं कह रहा हूँ ये तो 10 डिजिट में ही है, और हम 52 की बात कर रहे हैं, 10 डिजिट में से 9 1 प्लस 2 जो कि तुझे याद रखना पड़ता है। कहीं गलत कंट्री ना लगते हैं। सही बात, ना लायक। तेरे फोन को भी नहीं याद रखना पड़ता, उसको भी पता है कि तू लगाया, तेरे बस की नहीं, इंटरनेशनल लगा। फोन पता है क्यों नहीं मांगता तुमसे कोड, कहता तेरे बस की नहीं। वो खुद लगा देता है कि भाई हमें पता है तू इंडिया ही लगाएगा। तुम लगा भी नहीं सकते इंटरनेशनल, पता है ना तुम्हें? तुम में से किसी के पास इंटरनेशनल पैक नहीं है, ठीक है? अब पहले ऐसा सिस्टम नहीं कि कॉल लगा दोगे पैसे कट लगेंगे, नो 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 नो। फॉर एनीवन हु हैज पोस्टपेड, आई थिंक एंड आई रियली रियली होप आपके पेरेंट्स ने वो बंद कर रखा हो, वरना वन ऑफ दीज डेज समवन यंग एंड स्टूपिड विल कॉल इंटरनेशनली, और जो बिल आएगा मजा आ जाएगा। बट जो फॉर एनीवन प्रीपेड करंट पैक्स, डू नॉट अलाउ इंटरनेशनल कॉल्स। पोस्टपेड पे फोन करो, अगर तो मान लो इंटरनेशनल कॉल लगा दी तूने, नहीं, लेट्स जस्ट से इफ यू हैव पोस्टपेड, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट लाइक, मतलब नहीं होता वो ऑन ना, नहीं होता तो करना पड़ता है। एनीवेज, मूविंग ऑन। नाउ द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव हियर is for the certification reaction. I'll just tell you कि क्या करना है, इतनी कोई मेहनत है नहीं। प्योर एथेनॉल लेना है, प्योर प्योर, वैसे मिलना बड़ा मुश्किल था, प्योर एथेनॉल मुश्किल हो, 100% मिलता नहीं, 99, मतलब वही गोल्ड वाला सीन, मतलब 100% प्योरिटी, किसी भी चीज की 100% प्योरिटी कराना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब इससे क्लोज टू 100 है, कुछ हो जाते हैं, बट हाँ मतलब नहीं, लिख तो नहीं देते, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अपना 0.1% जब क्या। हाँ मतलब वही तो, मतलब बेचारा एक तो मतलब इट्स डिफिकल्ट, इट्स जस्ट डिफिकल्ट। नाउ ऐड 2 3 ड्रॉप्स ऑफ, देखो मतलब इससे अब एक्सपेरिमेंट्स है ना, मुझे इस, जैसे मुझे इससे पहले तक पता है क्या लग रहा था कि मतलब वो भाई साहब बात दे दो सल्फ्यूरिक एसिड की। हाँ मतलब दैट इज व्हाट यू थिंक कि मतलब, बिकॉज जैसे ही कुछ रिएक्शन के ऊपर लिखा होता है ना कैटलिस्ट वगैरह, को लगता है डुबा दो, हो जाएगी रिएक्शन। बट इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट सिंपल। और दूसरी बात यार, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कुछ भी डुबाओगे ना, देन द कंपोनेंट्स यू नीड आर आल्सो डिफरेंट, की मतलब फिर तुम ग्लास में तुम्हें करना पड़ेगा, एंड देन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तुम्हें एपरेटस यूज कर रहे हो उसमें उस करोसिव ना हो जाए, वो एसिड रह ना जाए। जैसे एसिड बात जब देते हो ना किसी चीज को क्लीन करने के लिए, स्पेशली गोल्ड वगैरह में बहुत होता है कि गोल्ड में प्योरिटी से बहुत फर्क पड़ता है ना? और जितनी प्योरिटी हो उसमें जितना, मान लो ना तुम मतलब गोल्ड को पानी बना दिया तुमने, ठीक है, एंड लाइक क्या छान लेते हैं, कोई बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। वो सारा बह जाएगा, और तुमने लिटरली मतलब लैक्स और करोड़ ऑफ गोल्ड बहा दिया होगा पानी के अंदर। बट इट्स प्रीटी इजी टू डू दैट। यू कैन लिक्विफाई, मतलब यू कैन नॉट लिक्विफाई नहीं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू व्हाट इज इट, दैट्स गोल्ड का एक कंपाउंड होता है, डोंट रिमेंबर, जो बहुत ही कॉमनली एक्सट्रैक्शन उसमें प्योरिफिकेशन में यूज होता है। एंड देन उसको रिड्यूस ना करो तुम, पाउडर बन जाता है रिड्यूस करके। अगर वो रिड्यूस ना करो तो फिर वो पानी गोल्ड विद येलो वाटर, so gold we could recognize, but I keep yellow water here, I spill it down, you're like क्या हो गया, and it could be as expensive as entire charm wood, मतलब that's how expensive it can be, because the in liquid form can store a lot of gold है। तो एक बॉटल गोल्ड की, ओए होए होए, it's like a gold का brick is very expensive by the way, एक दिन मेरा ट्राई करेंगे क्या? एक दिन श्योर श्योर, घर का सोना ले आना, मैं पानी ले आऊंगा। तुम्हारे घर का सोना, मेरे घर का पानी, लेट्स सी what happens. Okay, so now next, on the test tube we need a little bit of heat, and above the reaction to make a hot water bath, a beaker containing hot water for 5 minutes. Pour the hot water bath, meaning we are not hot water bath दे रहा है भाई, चौक indirect heating कर रहा है। इंडायरेक्ट कहाँ है 170 डिग्री पहली बार? हाँ वो तो भैया इसमें था, कर तो गया, हो ले ले हो गया, तो टूट तो गया, चल रहा क्या, इवापोरेट कर रहे हो तो
तुम कह रहे हो इवेपोरेट कर रहे हो, अरे भाई नहीं एस्केप करने दो ना उसको, क्या हो जाए इवेपोरेट करके, क्या गैस स्टेट में आ जाएगा, ले भाई मैं तो बंद कर दूंगा। सर उधर हो गया सर, उसे बहुत छूट गया है हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो टूटा ही है उसका, हाइड्रोजन टूट गया बेचारे का। तो बढ़िया है, बहुत छूट गया। कार केस पे ऑलरेडी भाई छह, क्या कितने थे इस पे देख, 6 थे इस पे, 6 थे, अब 4 हो गए, कैसे जोड़ लिया? डबल बॉन्ड तो बनाया, तो जोड़ लिया। मतलब हाइड्रोजन नहीं तू जोड़ा। कह रहा है कि तूने अपने हाथ से हाथ जोड़े, तेरे 2 हाथ आ गए। थिंक अबाउट योर क्वेश्चन यार, क्या कर रहे हो? एनीवेज, तो फिर हमने हॉट वाटर बात दिया जिससे इनडायरेक्ट हीटिंग हो, और मतलब इनडायरेक्ट हीटिंग मतलब टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीडिंग ऑफ द रिएक्शन। Pour the contents in a test tube 50 ml, take in another beaker, smell it. अब जी जब भी स्मेल इट बोलते हैं ना, मेरे को ना बड़ा दुख सा होता है, देयर इज अ रीजन फॉर इट, देयर इज अ रीजन फॉर इट। देखो लैब में थिंग्स कैन बी मिसलेबल्ड, थिंग्स कैन, कुछ ऐसा तुमने खतरनाक प्रोड्यूस कर लिया, फिर सूंघ के मौत हो गई, जो कि हो चुकी है लोगों की। तो the best way to the best way to smell something, and this is something the best is known as lab etiquettes, you never, मतलब तुमने कभी सब्जी को देखा है, मतलब मम्मी को देखा है, मतलब ये जो करते रहते हैं, तुमने शेफ्स को भी देखा हो, उसका रीजन होता है, अगर तुम अपनी कर लेना, ये चीज तुम कर सकते हो, ये चीज तुम कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। हाँ हाँ, तो if you just move your nose towards the food, steam is hotter than 100 degrees Celsius, just so you know, lot hotter than that. Congratulations. Obviously, it's much more sensitive, भाई साहब. So फिर फ्राई हो जाएगी ना, तो इसलिए they in trying to do so they cool it down and then essence उसकी फैलाते हैं. ठंडा भी, हाँ ठंडा ही, that's the main purpose of it. You could say कि अरोमा की मतलब अरोमा इधर है, अरे आगे हो जाओ, नहीं होना होता. You don't have to come under direct steam. It is very very hot, very hot. It will burn. अबे सोच के देखो ना, जस्ट एक चीज इमेजिन करना, तो मुझे समझ आया कितना डेंजरस है. बॉइलिंग वाटर है ना, ऐसे नाक में ना ऐसे फनल की तरह डाल कितना मजा आएगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्टीम इज. एंड इट्स, yeah, if you remember class 9th, steam has more energy at the same temperature. It has more energy. वो होगा 100 पे ही, क्योंकि अभी तक सारा पानी बॉईल नहीं हुआ है, होपफुली तुमने कुछ जलाया नहीं है तो ठीक है, तो it will stay at 100, but it is very very hot. I have burned myself a lot of times through steam. Very very common for me. Very common. For example, we used to have that steam bath. देखा तुमने, cold हो जाता है steam bath लेते हैं, तो mom used to say कि मतलब take it. So it takes half an hour to take it. That's so I was like जल्दी खत्म करो, पूरे खोल दो. And all of a sudden that rush and it's all the blanket around. All of a sudden that high temperature steam comes. तो मैं पूरा मतलब पूरी मतलब मेरे हाथ पूरे मुंह बर्न हो चुका होता था, और मैं तब भी कोल्ड चला जा रहा चाहिए, और कोल्ड सरप्राइजिंगली चला जाता था. आई यूज्ड टू लुक लाइक अ रेड पोटैटो, बट कोल्ड चला जाता था. इट लाइक इट्स किलिंग कोल्ड, मतलब कि सारे म्यूकस पूरा खत्म ही कर दिया. काम तो करता है, Bonds, but bonds. स्टीमर काम तो करता है. स्टीमर काम भाई, स्टीमर इज सेफर. स्टीमर डज नॉट, कहते हैं ना, मतलब उसकी जो रेट ऑफ वो होती है, स्टीमर इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स बेटर. इट इज मेड टू बी, हाँ मेंटेन करना होता है स्टीमर से भी. मैं तुम मान लो स्टीमर से मैंने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, फिर ले भाई सारा, यू विल बर्न योरसेल्फ, यू सीवियरली बर्न योरसेल्फ. You can have like मतलब proper burns through steam. I have seen people have, I have had burns through steam. क्या? हाँ मतलब क्योंकि ह्यूमन तो बेवकूफ, ह्यूमंस बेवकूफ है, वो मान चुके हैं, कहते हैं इतना दूर रहो. कुछ दिनों बाद ये भी आएगा कि जैसे अभी हमें बोला जाता है ना कि इतना डिस्टेंस रखना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर. देखना कुछ दिन बाद लंबे लंबे रॉड्स आएंगे कि देखो इतना दूर रहना है. हाँ अब ठीक है, ज्यादा, हाँ हाँ मतलब ज्यादा आ गया तो ओहो पी पी पी. सीट बेल्ट ही देखा तुमने, सीट बेल्ट लगाना इज प्रीटी लॉजिक है. पीप 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 ओ होगा, क्योंकि मौत तो तुम्हें ना डराई नहीं थी. मौत, और सीट बेल्ट हम क्यों लगा रहे पता है तुम्हें? मौत, पुलिस और पीपी. और आज लोगों तो ने फिर भी देखा है कि सीट बेल्ट लगा के छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से ऐसे ऐसे उसको वरमाला की तरह पहन लेते हैं. सारा पर्पस खराब हो गया गलती से. एंड आई एम होपिंग नेवर दैट हैपेंस, बट गलती से एक्सीडेंट हो गया ना, उसका एयर बैग ही उसको मार देगा. You know that air bag kills. Air bag kills. तुमने लोगों को देखा ऐसे पैर रख के गाड़ी पे बैठे हुए, कि मतलब अरे चिल कर रहे हैं गाड़ी में. फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी में एक चीज आती है, घर नहीं है. तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर नहीं. रुकी हुई भी पता नहीं, आजकल रुकी रुकी भी ठुक जाती है. तो नहीं,
बिकॉज इफ यू डू दैट एंड रिमेंबर एयर बैग्स खुलेंगे किस स्पीड से, तो तुम ना ऐसे पेपर की तरफ फोल्ड हो जाओगे बहुत बार हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ। मरने से अच्छा नहीं है, यू डाई। स्पाइन रप्चर बोलते हैं उसको, स्पाइन रप्चर, मौत है। और इट्स नॉट अ, तुम्हें पता है किसी का, तुम्हें यू नो जस्ट हिप डिस्क डिस्प्लेस होना या स्पाइन होना कितना पेन होता है, यू एक्सपीरियंस एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड यू टाइम विथ इट, तो नो, ये बहुत ही सेफ, ध्यान रखना। ऐसे टांगे वांगे उठा के ना तो नहीं, कोई मूवी नहीं बना रही कि हाँ बिल्कुल कतई है, मुंह बिल्कुल वैक्स करके बराबर, चलो भाई वीडियो बनाएंगे हम, कूल बेटा, पेपर फोल्ड हो जाएगा। तू ही गाड़ी में आ रहा था उस दिन पीछे ऐसे कर, एस्थेटिक। ट्रेन में नहीं, गाड़ी में था ये। मुझे नहीं पता हो, वीडियो में तू देख रहा था, मैं देख रहा था। मैंने नहीं बोला, मैं तो मानता ही बोल रहा है। ओए ये गलत बात बता रहे तो वॉलेंस इन माय क्लास, तू रुक, वेट फॉर वन कंप्लेंट। चलो एनीवेज, तो ये जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, दिस इज व्हाट इज एस्टर एंड दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द परफ्यूम्स दैट वी हैव, ऑल ऑफ देम हैव एस्टर, नॉट जस्ट परफ्यूम्स। नाउ एस्टर इज वन ऑफ द थिंग्स। मतलब अगर हमने मिथेनॉल या कौन सा एस्टर बना, एग्जैक्टली, and the majority of the perfumes we use are mixtures of esters, not just one ester, mixtures of esters, and all जो तुम देखते हो ना extracts की, मतलब essential oils and stuff, all of them are esters. And the reason you might say कि सर rose extract भी तो होते हैं, well that is the fun part. What we did in a chemical reaction is naturally done in a plant which produces its ester. So plants have ester. मिक्सचर जो होता है हाँ, and a lot of products that you buy and lot of तुम smell सुनते हो ना, मतलब जो you go to for like maybe forest नहीं तो मतलब garden and something and you smell different things, all of them have esters in it, all the pleasant smell, pleasant, remember esters have pleasant smell, ठीक है, they have अगर इस साइड को प्लेजेंट है ये होगा फाइन यार, no one thinks कि let's say something किसी को पेट्रोल की नेक्स्ट है पेट्रोल सबको अच्छी लगती है, I have never heard someone, पेंट किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को नहीं लगती लगती है सर क्या, नहीं पेंट नहीं, मैं हाँ, नहीं अच्छी लगती, हाँ वो एक्रिलिक लगती है लोग, that's true and that's more, so that's just simply psychological, you like things that you, मतलब for example पेट्रोल क्यों पसंद है तुम्हें, पी थोड़ी लोगे, महंगी चीज है, वो गाड़ी में जा रही है, हाँ तो मतलब आएगा, ठीक है, वही कर दो चीप, कर दो चीप, फिर देखो नहीं पसंद आएगी इस पर, तो इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजिकल देन साइंस एक्चुअली। और yes, sweet smelling could be categorized as, मतलब it's not non-irritating smell, a lot of unpleasant smell are irritating, it irritates your, कहते हैं ना, मतलब नाइलिंग कहते हैं ये गंदा नहीं, गंदी smell is evolutionary in nature, the reason we are मतलब wary of bad smells because they mean that something not good for us is around us, something rotten, not good for us, something like for example smell of like rotten things, rotten bodies, rotten whatever might be there which is unsafe, a little unsafe or a little foreign, a lot of times foreign smells are taken to be कहते हैं मतलब unpleasant, ठीक है, and a lot of known smells are just pleasant। तुमने देखा है कि तुम्हें जो स्मेल्स अच्छी लगती है, नोटिस करना, गंदी लगने वाली स्मेल्स हर दूसरे मतलब वीक नहीं आ रही, ये ऐसी गंदी स्मेल सूंघी नहीं मैंने कभी जिंदगी में, बट अच्छी इतनी ज्यादा, मतलब लैवेंडर, वो पता है, मतलब you don't get a lot of new pleasant smells, you don't get it because it's difficult to make them, ये random mix कर दो हमेशा अच्छा नहीं बनेगा, so they, but again esters are not the only thing that creates smells and good smells, but ester is one of the things that creates good smells. Yes, it is an essence is an ester, by the way. Vanilla essence is an ester. Yeah, the thing is that's a chemical thing. नहीं. मतलब thing is again and again understand just because मैंने reaction लिख दी है. For example मैं तुम्हें बताऊँ, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, हाइड्रोजन गैस लिया मैंने, ऑक्सीजन गैस लिया, बिजली पास करी, क्या हुआ, पानी बन गया, ऐसे पानी बनता है बाद में तो फालतू कर रहे हैं काम, सर बादल में ही तो बिजली होती है, आप समझ नालायक, अगर ऊपर तो वैसे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंडेंसेशन से होता है, वाटर साइकिल चलता है, पानी हमेशा से है,
पानी हमेशा से है, पानी किसी ने प्रोड्यूस नहीं करा। देखा तुमने कि ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, तुम्हारा अनुमान है। किसने कहा तुझे? वही देखा है? हाँ, मैं अभी कर दूं तेरे लिए कंडेंसेशन मतलब? वो हम करते हैं तो हमें लगता है कि वो भी ऐसा ही करते हो। नहीं 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 नहीं, क्लाउड बहुत नीचे है भाई, तू फॉर्म होते देख सकता है, तो आराम से सीट लगा के फॉर्म होते देख सकता है। क्लाउड बहुत नीचे है, इतने नीचे है वो, लिटरली इतने नीचे है कि तुम एक हॉट एयर बलून लेके निकलोगे ना, एक क्लाउड आ जाएगा उस पे। प्रिटी, और क्लाउड्स आर नॉट, कहते हैं मतलब इट्स जस्ट मूवीज ने ना बहुत ही गलत आपको इंडिकेशन दे रखी है दैट क्लाउड्स आर फ्लफी एंड मतलब ओए ओए नहीं, वो बहुत मतलब इट्स बहुत भारी होता है। अगर बाय द वे इट्स इलीगल फॉर अ स्काई डाइवर टू गो थ्रू अ क्लाउड, यू कैन डाई गोइंग थ्रू अ क्लाउड। हाउ नॉन लाइक डिज्नी इज दैट, है ना? हाउ नॉन डिज्नी इज दैट कि डिज्नी में ओए ओए, इतने मतलब इतने हैवी वाटर, वाटर इज हैवी। हमें वाटर हैवी क्यों नहीं लगता? थोड़ा सा है, बारिश में ना, कभी तेज बारिश में निकलना, जब ऐसे सर पे लगी ये यार क्या हो गया? बचाओ प्लीज बचाओ, कोई देखते हो मतलब छाता भी लगता है कि आज तो मौत है। बारिश मौत कर दे मतलब बारिश में तो, बारिश और उसमें फिर भी डाउनपोर इतना नहीं होता। लेट्स से पिचकारी है, पिचकारी सबको पता है, यहाँ यहाँ पे रख के पिचकारी चला, पीपल हैव हर्ट देमसेल्फ विद पिचकारी बाय द वे, या एक्चुअली हर्ट। वाटर बैलून से नहीं, वाटर तो फोर्स का सीन है, पानी का नहीं। और सर हम सब प्लेन है, सामने क्लाउड होता है। क्लाउड के पास करते हैं बेटा ऐसा भी है। हमारे लिए डेंजरस है, प्लेन के लिए नहीं। प्लेन तो जा सकते हैं, हाँ outside हो जाते हैं। हाँ, बट प्लेन्स नेवर गो थ्रू क्लाउड्स, नेवर। सर तो मैंने नो नो नो, they just सर, don't। अगर हम हाँ। बेटा एक बात बता, एक बात ध्यान से सुन के देख, ठीक है? तुम पे दो ऑप्शन है, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक मिनट, तो मैं बहुत ही सिंपल से एक्सप्लेन करूंगा तुम, ठीक है? लेट्स से एक फ्लाईओवर है जो बिल्कुल क्लियर है ऊपर, ठीक है? और नीचे कतई बहुत ट्रैफिक है, तुम कौन सा रोड लोगे? एयरप्लेन क्या होती है, ऊपर उड़ सकती है थोड़ी और, क्लाउड्स, ओ माय गॉड, डॉज इट। तो सर नीचे कैसे आएंगे? हाँ तभी तो क्लाउडी वेदर में नीचे नहीं आ पाते। घूमते रहते दिख ही नहीं रहा कहाँ है, कहाँ है। नीचे आने की दिक्कत है, ऊपर तो जितना मर्जी, अरे भाई ऊपर वेदर नहीं है कुछ ऊपर। प्लेन्स के लिए तुमने एक बात बताओ, तुमने कब स्टॉर्म देख लिया प्लेन से अंदर? आई डोंट थिंक यू वुड हैव। नीचे दिख रहा होता है ना स्टॉर्म, जो नीचे हो रहा है, कभी बारिश दिखी तुम्हें खिड़की से? ओए ओए ओए, ट्रेन नहीं है वहां पे, बारिश की बूंदें नहीं आएंगी वहां। दैट जस्ट डजंट हैपन बिकॉज इट्स above the troposphere, it is permitted above the troposphere। और उसमें भी इनविजिबल वो होते हैं, जैसे मतलब हमारी रोड्स होती है, लेन्स होती है, उनकी भी इनविजिबल लेन्स होती है, इनविजिबल लेन्स होती है, और लेन्स के थ्रू जा रहे होते हो, ऐसे नहीं कि मतलब है चल एक लेफ्ट ले लेते हैं, नहीं, पीपल विल डाई, प्रीटी श्योर। कोलिजन्स प्रिवेंट करने के लिए बहुत 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 सीवियर एटीसी गाइडलाइंस होती है। जस्ट सो यू नो, हमें लगता है, मुझे भी लगता था कि वो ना कांस्टेंट कम्युनिकेशन में होते हैं कि और भाई कैसा है एटीसी के साथ, कि कहाँ सामने से कुछ आ रहा है, चल मैं साइड ले लेता हूँ। A lot of places are just it's just impossible to communicate there। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं ये ले पकड़ लिया हमने लेन, लेन एक्सेस मांगा तुमने, तुम एक्चुअली फिजिकल टनल मांग रहे हो एक, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट इतनी अच्छे से स्पेस को डिवाइड कर रखा है ऊपर में हवा में, वो ले लेते हैं एंड देन तुम्हें पता है 2 घंटे तक इसमें किसी को आने नहीं देना, एटीसी किसी और को उसमें जाने नहीं देगा, और ना प्लेन को पता है कोई आ रहा है सामने से या नहीं। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई इट इज सो हैजार्डस। अगर तुम पायलट बन के अपनी प्लेन की चलो भाई वो बड़ा, तुम्हें इतनी वार्निंग्स मिल जाएगी ना एटीसी से, एंड एक्चुअली वो तो इंडिया है, तो वार्निंग मिलेगी और जेल में जाओगे। यूएस में तो फायर दो ना, F2 जेट्स आ जाएंगी तुम्हारे सामने एंड आई विल शूट यू डाउन, एंड वो तो वेट करते हैं, बिलीव मी। एंड इवन इफ आई वाज इन अ फाइटर जेट एंड देयर वाज अ सिविलियन ट्राइंग टू फ्लाई ऊपर, मैं कहूंगा ये मरना डिजर्व करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम a lot of people could have died। Actually, the number of people dead in a plane crash is not just the people who are in plane. Debris can be, and a lot of people will lose their jobs। Lot, and not lose their jobs as in सब जेल जाएंगे। पायलट जेल चला जाता है मस्ती मस्ती में, अगर बच गया, सोचो पायलट बच गया बेचारा, पहले तो गिल्टी नहीं छोड़ रहा उसे, फिर मतलब इतनी बड़ी इंस्पेक्शन चल रही है। तो तुमने मूवी नहीं देखी रनवे 34? भाई दुखी कर दिया था बेचारे को। आग बंद करके लैंड क्या कर दिया यार, सच मूवी है। आग बंद करके लैंड क्या कर दिया, कह रहे दारू पी थी तूने, पी भी ली थी बेचारे ने। सो नो, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट this particular story and a lot of such stories makes me realize कि
a lot of common things that we think about. For example, communication we take for granted because we are in a place where communication is guaranteed. Okay, for example, actually, you could just be blindfolded and drive because that is how precise the maps data, the GPS data, the cameras can be around. कैसे देखेंगे? See, that's the exact thing. That is exactly how Teslas work, by the way. You are blindfolded anyway. अच्छा, Teslas are पूरे machine से ही कर रहे हो सब कुछ and they work effortlessly. But not every place is like that. So we have to develop measures. One of the things you could do कि सर वहां पे इतनी मेहनत क्या कर रहे हो, टावर लगा दो ना, वाटर बॉडी के ऊपर बोल रहे हैं. देखिए आई हैड दैट डाउट कि पागल हो गए हो क्या, 4 टावर लगाओ आगे सिग्नल, है ना. नहीं ऐसे नहीं. वो एक और बड़ी मजेदार चीज यूज करते थे, पता है वो क्या यूज करते थे? थिंक इज कितनी डीप है भाई, वो कौन दे कंस्ट्रक्शन के पैसे? सर ऑयल रिग को बंद कर दिया। ऑल रिग के पता ऑल रिग से पैसा आ रहा है, टावर मैन से पैसा नहीं आ रहा. समझो, पैसा आ रहा है तो हम बहुत लगाएंगे. मान लो कहीं डायमंड की खान मिल जाती है तो कहते ही देखो कैसे मतलब डेवलपमेंट हो जाएगी. बट अगर मिट्टी है अंदर तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता. क्या? अच्छा, तो ऑलरेडी so you think ऑलरेडी happen to be at the place जहां पे हमें नेटवर्क की दिक्कत है. और do you think ऑलरेडी do not have towers? They have cell towers on top of them. मतलब they have. And अरे enough buoyant material बनाते हैं। that's also a good idea. That's very good idea. But you have to understand. नहीं, तुम्हें still water लगता है ओशन, पता नहीं क्यों. Exactly. ला तेरा cell tower आज यहाँ तक कल पहुंच गया अमेरिका. अच्छी बात है, बढ़िया हर जगह signal आएंगे। हाँ, और कनेक्ट किससे होगा? फिर घर से कनेक्टेड है, वो तार लगी हुई है. क्या सेल टावर कैसे कनेक्टेड होता है पता है तुम्हें? देखो 2 तरीके हैं, या तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो, सैटेलाइट बहुत दूर होती है, ठीक है. प्लेन से भी तुम सोचते हो प्लेन सैटेलाइट कनेक्शन क्यों नहीं करती है? एनर्जी कौन देगा, उतना पैसे कौन देगा उस कम्युनिकेशन के? वो पता है क्या यूज करती है? एटमॉस्फेरिक आयनाइजेशन यूज करती है. ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे बात, बहुत अच्छा लगा था. किस दिन देखना तुम ये. तो एटमॉस्फेयर जो होती है ना, आयनाइज्ड है क्योंकि कंटिन्यूअसली रेज आ रही है जो, तो पता है ना तुम्हें कि मतलब हमारी ऑक्सीजन प्रिवेंट हमारी ओजोन प्रिवेंट कर रही है, तो आयनाइज लेयर है पूरी की पूरी. अब इस आयनाइज लेयर की वजह से क्या होता है, प्लेन ना सिग्नल नीचे फेंकती ही नहीं है. कहती भाई हमसे नहीं होगा, इतनी दूर नहीं जा पाएंगे हम. तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक खेलती है, ऊपर फेंक देती है और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है. और आयनाइजेशन इज दैट फन ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट इट नॉट जस्ट is like reflecting, it is also amplifying the signal. It's saving a lot of energy. तो मोबाइल का क्या? हाँ मतलब रिसीवर से ऊपर लगा दोगे ना, सर तो ये बहुत बार तो कर सकते हैं कि ऐसी तो कर. बार लगा के नहीं, अबे तो टावर से दूर भी तो चला गया वो प्लेन बाद में. ऐसे करना है। रेंज चली गई उसकी. टावर रेंज होती है ना, टावर की एक रेंज है, टावर उससे ज्यादा कहाँ ही जाएगा. इतने देखा है ना तुमने, हम तो भाई इतने टावर है कि मतलब मेरे घर पे एक लग जाएगा मुझे लगता है. बट तब भी कैनोड के अंदर भी सिग्नल नहीं आता, तब भी सोचो इतनी पास में. 5G टावर तो तुम्हें पता है और ज्यादा लगाने पड़ते हैं. 5G टावर्स आर मच मोर व्हाट डू यू से, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होनी चाहिए, पास होनी चाहिए. तो मतलब 5G की स्पीड बाद में तुम्हारे वाईफाई की स्पीड से तेज होती है, क्योंकि वाईफाई का हम प्लान नहीं खरीदते इतना एक्सपेंसिव. वाईफाई बहुत तेज है, वाईफाई 1 Gbps तक जाता है. 5G प्लान महंगा भी होता है लेकिन बहुत तेज होता है, बट अनरिलायबल होता है. फायदा क्या है? तो फायदा आज तक मुझे 5G कोई बेनिफिट नहीं मिला. मैं आपको 5G सपोर्ट हमारे घर में फोन पे लगा रखा है, वो पूरे घर में एक ही पॉइंट पे आता है, खिड़की के. हाँ तो कुछ नहीं. द थिंग इज 5G is not that good in India. 5G is anywhere not that good. Just so you know 5G क्या यार, थिंग इज इनोवेशन तो होनी है ना. 5G आएगा तभी तो 6G आएगा. पर सर 5G काफी स्पीड देता है. हाँ मतलब I have hit 1 Gbps on 5G. 100 Mbps का मैं 1 Gbps हिट कर चुका हूँ. 5G बहुत तेज होता है, बट तुम्हें पता है 1 Gbps हिट करने से क्या होता है? तुम डेटा पैक पे हो. हाँ. क्या? अनलिमिटेड 5G अनलिमिटेड. No, just so you. This is not at all in your. मतलब this stops being a part of now science. So ये uses तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना, I guess. और डीनेचर भी कर चुका हूँ. ठीक है, तो ये PDF तो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में और आगे ही पढ़ेंगे. और टेस्ट ऑफ अल्कोहल में सोडियम मेटल टेस्ट एंड एस्टर टेस्ट ऑफ अल्कोहल. मतलब सोडियम मेटल टेस्ट क्या, सोडियम डाल के देखो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने लगेगा, रिस्क ऑफ फ्लोरोसेंस, ठीक है, और उसमें आग लगा लो, ले हाइड्रोजन, ठीक है. एस्टर टेस्ट क्या है, उसके साथ ना विनेगर डाल दो, अगर खुशबू आने लगती है, क्योंकि विनेगर में से बदबू आती है. जरूरी नहीं है, क्या पता कोई और कंपाउंड हो जो मेरे घर कुछ और बना दे जिसकी खुशबू आती है. नहीं,
हमें क्या पता सी सर नहीं 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 सी नहीं, सिंपल, ये दो टेस्ट है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तू जो पूछ रहा था